Hello friends, very warm welcome to all the students of my channel. Now guys, since there are only a few days left for the exam, so that's why I thought क्यों ना मैं आपको एक सेकेंड वीडियो अपलोड कर दूँ सेम डे. तो अभी मैंने नून में एक वीडियो अपलोड किया था दैट वाज बेस्ड ऑन फाइनल रिवीजन फ्रॉम दी कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर एंड दिस इज़ दी सेकेंड वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ ऑन यूट्यूब चैनल. दिस इज़ बेस्ड ऑन, लेट मी tell you what is special in this video. So guys, आपको पता होना चाहिए, you know that in every UGC NET exam which is held every 6 months, at least one questions, not I'm talking about only one, actually more than one question is definitely asked from the subtitles, right? Subtitles of major text, that's why in this video I will discuss with you selected important text and their subtitles that are repeatedly asked in your examination. And the secondly, I will tell you about the pseudonyms, right? See, this is the pseudonym. This is the second file where I discuss about the pseudonyms used by important writers that are important for your UGC NET English exam point of view. And the third, I will share with you all a list of Booker Prize winning, major works that appeared or, repeated in your examination. So basically now, from this single video, guys, you will be able to secure 20 plus marks directly through these types of question for your upcoming UGC NET English exam point of view. Now let's start without wasting any time. अच्छा, मैं आपको बता दूँ guys, if you'd like, I can also help you, to share the PDF files but only for the members of my channel. तो मैं आपको बता दूँ, you please can download it from the description box of yesterday's members only short जो मैंने अपलोड किया था on my channel, जो members only के लिए था, उसके description box में you will find the PDF file of today's video का जो भी मैं मैटर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, you get from there. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं, भी no wasting more time. सो फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट नंबर नॉवल वी हैव डैनियल डिफॉय का रॉबिन्सन क्रूसो, जिसका सब टाइटल है द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो ऑफ यॉर्क मैरिनर. दिस इज़ 1917 पब्लिकेशन. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस नॉवल एडवेंचर नॉवल है, रियलिस्टिक फिक्शन है, ट्रैवल नैरेटिव है, prose fiction है, right? और this is consider first English novel in realistic tradition. Now please keep in your mind. और ये जो आपका इसका सेटिंग है इस पर्टिकुलर नॉवल का, वो आपका डेजर्टेड आइलैंड में है और इसमें प्रोटैगनिस्ट ऑफ कोर्स रॉबिन्सन क्रूसो है हमारे पास. इसमें उन्हीं के बारे में बताया, शिप रैक के बारे में, किस तरीके से वो डेजर्टेड आइलैंड पर चले जाते हैं और सर्वाइव करते हैं वहाँ पे 28 ईयर्स तक. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट. तो इस पर्टिकुलर ये जो नॉवल है इसमें आपको थीम्स मिल जाएंगे, सर्वाइवल, right, and self-reliance, colonialism and imperialism, civilization versus nature, types of आपको major themes मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर नॉवल के लिए. चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट. जोनाथन स्विफ्ट का गुलिबर्स ट्रैवल. नाउ द सब टाइटल वी हैव travels into several remote nations of the world 1726. सो फ्रेंड्स, ये जो आपके जोनाथन स्विफ्ट का नॉवल है, इसे फर्स्ट एनोनिमसली पब्लिश कराया गया था. एनोनिमसली दैट वाज पब्लिश्ड फर्स्ट. एंड ये आपका एक सटायर है, ट्रैवल नैरेटिव है, प्रॉस फिक्शन है. एंड गाइज दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स लाइक 4 वॉयज. तो फर्स्ट तो है आपका लिलीपुट. आई एम जस्ट राइटिंग हियर लिलीपुट, राइट, जहाँ पे आपको एक ऐसा लैंड जहाँ पे आपको टाइनी पीपल मिलेंगे. नेक्स्ट वी हैव, now the next one we have Bromding Neck. this is the land of giants. ठीक है, यहाँ पे giants लोग रहते हैं. and next number 3 we have Laputa. Laputa जहाँ पे आपको land of intellectual absurdities आपको देखने मिल जाएगी. and the number 4 we have, number 4 guys we have Hynums. I'm just writing here the spelling is Hynums, right? this is based on land of rational forces, right? now please just keep in your mind. Now next one we have Samuel Richardson's Pamela and the subtitle we have Virtue Rewarded. this is 1740. क्लैरिसा इसमें आपकी कौन है, हीरोइन है ऑफ द नॉवल. और इसका अनदर टाइटल भी है क्लैरिसा जो आपके सैमुअल रिचर्डसन का है, और इसका सब टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, दैट इज़ 1748. फ्रेंड्स, ये जो पमेला है दैट इज़ रिटन इन इपिस्लरी नॉवल है, मतलब कि जिसे लेटर्स फॉर्म में लिखा गया है. एंड नेक्स्ट वन वी हैव क्लैरिसा. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड जिसका फुल टाइटल मैंने आपको भी बता दिया, ये भी आपकी इपिस्लरी नॉवल है, राइट?
Now next number 4 we have Henry Fielding Tom Jones. The subtitle we have The History of Tom Jones, a foundling 1749 publication. Now the number 5 we have Lawrence Stern Tristram Shandy. This is the novel and the subtitle The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman during 1759 to 1767. सो फ्रेंड्स ये लॉरेंस टर्न का बेसिकली डिवाइडेड इनटू 9 वॉल्यूम्स में लिखा गया है। ये एक कॉमिक नॉवल है, एक्सपेरिमेंटल फिक्शन है एंड मीटा फिक्शन है। नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में इसे लिखा गया है, मीन्स टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन लाइक ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल, राइट। और एज वेल आपको एपिसलरी एलिमेंट्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस। absurdity of human life मेन थीम है इसमें, लाइक फेलर ऑफ कम्युनिकेशंस, सो दीज आर बेस्ड ऑन राइट। एंड अर्ली एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है ये मीटा फिक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिव नॉवल का, राइट। एंड इसके अंदर सेलिब्रेट किया गया है एंटी नॉवल स्ट्रक्चर एज वेल, यू नो दिस इज द की टेक्स्ट ऑफ अगस्टन एज और यू कैन से 18th century novel, right? Now the number 6 we have Frankenstein and the subtitle we have The Modern Prometheus. This is 1880 publication written by Mary Shelley. Important है, फर्स्ट एडिशन इसका बोल सकते हो जो रिवाइज्ड था वो 1831 में आता है। 1831 में रिवाइज्ड वर्जन इसका आता है, एडिशन यू कैन से। और ये आपका एक गॉथिक नॉवल है, साइंस फिक्शन है एंड रोमांटिक फिक्शन है, राइट। दिस इज़ एक्चुअली अबाउट द विक्टर फ्रैंकनस्टाइन, जो आपके स्विस साइंटिस्ट होते हैं जो क्रिएट कर देते हैं एक ऐसा लिविंग क्रिएचर फ्रॉम द डेड बॉडी पार्ट्स इन हिज क्वेस्ट टू कॉन्क्वर डेथ, राइट। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट। नाउ द मेन थीम आपको इसमें मिल जाएंगे लाइक आइसोलेशन एंड अलाइनेशंस, द डेंजर ऑफ नॉलेज एंड अनचेक्ड एम्बिशंस एंड नेचर वर्सेस नेचर आपको देखने मिल जाएगा एज ए मैन थीम। एंड दिस कॉल्ड फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल इन लिटरेचर। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग्स मिल जाएंगी गॉथिक हॉरर एंड रोमांटिक आइडियल्स की, एज आई टोल्ड यू द सबटाइटल ऑफ दिस नॉवल। सो की टेक्स्ट इसको कंसिडर किया जाता है ऑफकोर्स रोमांटिसिज्म, गॉथिक फिक्शन एंड अर्ली साइंस फिक्शन का, राइट। नाउ प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड। और कैरेक्टर मैंने आपको मेन इसमें बता ही दिया, विक्टर हैं आपके, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन, राइट। एंड सो दीज थिंग्स यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। चलिए लेट्स मूव ऑन। वॉल्टर स्कॉट का वेवरले और यू कैन से दिस 60 years since 1840 publication. Now this is the historical novel, right, जिसे अक्सर आप बोल सकते हो और you can call it the first historical novel in English literature, right, the first historical novel in English literature, right. और इसको गाइस सेट किया गया है द मॉडल फॉर लेटर हिस्टोरिकल फिक्शन पर। नाउ इसमें आपको एडवर्ड वेवरली मिल जाएंगे जो एक यंग इंग्लिश ऑफिसर होते हैं और किस तरीके से वो विजिट करते हैं स्कॉटलैंड एंड गेट्स इन्वॉल्व इन द जिकोबाइट अपराइजिंग ऑफ 1745। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन जिसका एम था एट रिस्टोरिंग द स्टुअर्ट मोनार्की। तो उसमें किस तरीके से वो इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट। नाउ द थीम यू विल चेक इन दिस क्लैश ऑफ cultures and loyalty and identity, historical changes and loss, or Edward Waverly the main character of the novel. Now let's discuss about the Emily Bronte Wuthering Heights and the इसका कोई सबटाइटल तो नहीं है बट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड एंड चेक फॉर योर मैं इसको आपको ईयर और पब्लिकेशन बता देती हूँ। That was published 1847, Wuthering Heights, and under the pseudonym Ellis Bell. Ellis Bell, right? Gothic novel है, romantic fiction है, tragic love story है। Novel actually tells the dark and intense story of Heathcliff की बताइए इसमें and Catherine Earnshaw की, जिसे यॉर्कशायर मूर्स में सेट किया गया है। Now the passionate, obsessive love, रिवेंज एंड क्रूलिटी, दीज आर दी मेजर थीम ऑफ द नॉवल। और इसका जो फ्रेम नैरेटिव है वो आप बोल सकते हो मिस्टर लुकवुड जो एक विजिटर होते हैं, हियर द स्टोरी फ्रॉम द नेली डीन जो एक हाउसकीपर होती है, ठीक है। प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और की टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है विक्टोरियन लिटरेचर में, बट ऑफन कंसीडर अहेड ऑफ इट्स टाइम, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क एंड द मोरल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। नाउ दिस इज द मेजर वर्क फॉर गॉथिक फिक्शन में भी कंसीडर किया जाता है, right? Now please just keep in mind the things I just told you regarding this particular Wuthering Heights. This is the only novel by Emily Bronte जिसे इन्होंने publish कराया था before a year her death, इनकी 1848 में डेथ हो जाती है और 1847 में फाइनली ये पब्लिश हो रहा है। एंड
जो आपके एमिली ब्रॉन्टी है उनका जो स्यूडोनेम है दैट इज़ एलिस बेल। अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी आपसे लिस्ट ऑफ कंप्लीट, सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव शार्लोट ब्रॉन्टी जेएनआर एंड ऑटोबायोग्राफी 1847 इसका पब्लिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉथिक नॉवल है, बिल्डिंग्स रोमन है, कमिंग ऑफ एज नॉवल इसको कंसिडर किया जाता है, रोमांस है। ये नॉवल एक्चुअली ट्रेस कर रही है द लाइफ ऑफ जेन एयर, जो एक ऑर्फन होती है और किस तरीके से वो ग्रो हो रही है, उसको फेसिंग करना पड़ता है कितना ज़्यादा क्रूलिटी और हार्डशिप, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट, राइट। और जो बर्था मैसन का कैरेक्टर है वो यहीं से आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। नाउ द नंबर 10 जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च, जिसका सब टाइटल है अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ 1871 to 72 ड्यूरिंग दैट वॉज पब्लिश। और नेक्स्ट वी हैव थॉमस मोर का यूटोपिया, अ लिटिल ट्रू बुक नॉट लेस बेनिफिशियल दैन एंटरटेनिंग 1516, ओके। और 1551 में आई थिंक दैट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, क्योंकि ये फर्स्ट उसको लिखा गया था इन लैटिन, राइट। इसको लैटिन में लिखा गया था ओरिजिनली 1516 में, एंड दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इन इंग्लिश 1551, राइट। जस्ट कीप इन योर माइंड एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, और यहाँ से आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, विलियम वोर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो लिरिकल बैलेड्स है, लाइक लेट मी चेक 12 नंबर, ब्लैकी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इसका जो कंप्लीट टाइटल है, फुल और सब टाइटल है, वी हैव शोइंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल 1794, राइट। एंड लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798 बाय बोथ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। Now 14 number Alfred Lord Tennyson in Memoriam, complete or subtitle we have In Memoriam AHH 1850. Now Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray, इसका कोई फॉर्मल सबटाइटल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव जोसेफ कॉनरेड लॉर्ड जिम आर्टेल, दिस इज द 1900 पब्लिकेशन। E.M. फोस्टर का A Passage to India, नो सबटाइटल। 18 नंबर जेम्स जॉयस A Portrait of the Artist as a Young Man, this is no subtitle। we have Virginia Woolf। सो फ्रेंड्स T.S. एलियट का द वेस्टलैंड, इसका सबटाइटल तो नहीं है मगर 1922 पब्लिकेशन, रेवोल्यूशनरी वर्क है, बट वी हैव ओपनिंग लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ समटाइम्स कंफ्यूज्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। तो प्लीज जस्ट कीप इन योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो सबटाइटल, बट V.S. नायपॉल का द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, रुथ पवार झावाला का हीट एंड डस्ट, राइट। अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर, J.M. क्वाइट्जी डिस्ग्रेस, बैन ऑकरी द फेमिश रोड, नदाइम गॉडिमर द कन्वर्सेशनिस्ट। दीज ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनको प्लीज़ आपको देख के जाना है। एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन टू द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, द वाइट टाइगर अभी 2008 पब्लिकेशन है। J.M. क्वाइट्जी का डिस्ग्रेस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1999, बैन ऑकरी का आपका फैमिश रोड इंपॉर्टेंट वन 191, एंड नदाइन गॉडिमर का द कंजर्वेशनिस्ट दैट वाज पब्लिश 1974, राइट। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट राइटर एंड देयर स्यूडोनेम्स फॉर UGC नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जॉर्ज इलियट, इनका जो रियल नेम है वो है आपका मैरी एन इवान, और इनका स्यूडोनेम है जॉर्ज इलियट, राइट। एलिस बेल, एक्टन बेल और क्यूरिल बेल, ये आपके एमिली ब्रॉन्टे, एनी ब्रॉन्टे, शार्लोट ब्रॉन्टे, ये तीनों सिस्टर्स हैं, ठीक है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स है। और इनका जो एलिस बेल आपका एमिली का है, एक्टन आपका एनी का है, एंड क्यूरल आपका शार्लोट ब्रॉन्टे का स्यूडोनेम है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड। नाउ द जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर, राइट, एंड द स्यूडोनेम जॉर्ज ऑरवेल। नाउ मार्क ट्वेन, these have been actually asked in your examination। रियल नेम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लैमनस, एंड इसका स्यूडोनेम है मार्क ट्वेन। नाउ नंबर 5 वी हैव जोसेफ कॉनरेड, इनका रियल नेम जोसेफ थियोडोर कॉनरेड कोर्डज़ानियोस्की, ठीक है, और इनका ये स्यूडोनेम है जोसेफ कॉनरेड। नाउ ल्यूस कैरोल का चार्ल्स लुटविक लॉर्डसन, राइट, और ये इनका स्यूडोनेम है, रियल नेम एंड स्यूडोनेम। वॉल्चेयर, रियल नेम है इनका फ्रेंकोइस मैरी एरोस्ट, ठीक है, वॉल्चेयर इनका स्यूडोनेम है। नाउ रिचर्ड बचमैन स्टीफन किंग, इनका ये रियल नेम है स्टीफन किंग, एंड दिस इज द रिचर्ड बचमैन pseudonym occasionally cited in comparative literature questions। Now number 9 we have George Gascoigne, sometimes appear in older net questions as pseudonym user। मैं आपको बता दूँ use several pen names in his satirical works,
दो गैस्कोइन इटसेल्फ वाज समटाइम्स यूज्ड एज अ स्यूडोनेम। तो ये भी इनका एक स्यूडोनेम की तरह ही इन्होंने यूज़ किया था एंड सेवरल टाइम ही यूज डिफरेंट, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। सिल्विया प्लाथ अर्ली राइटिंग्स अंडर स्यूडोनेम में इनकी आई थी विक्टोरिया लुकास, और इनका बेस द बेल जार जो इनका ऑटोबायोग्राफी है दैट वाज 1963 पब्लिकेशन, जो इन्होंने स्यूडोनेम विक्टोरिया लुकास के पर एज ए स्यूडोनेम से इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। नाउ द बोज, ये चार्ल्स डिकेंस का आपका स्यूडोनेम है एंड यूज्ड फॉर अर्ली स्केचेस लाइक स्केचेस बाय बोज 1836 ही यूज्ड इट। ठीक है। ओ हेनरी फ्रेंड्स रियल नेम विलियम सिडने पोर्टर का ओ हेनरी, दिस इज द स्यूडोनेम। नेक्स्ट नंबर 13 वी हैव साकी, ये रियल नेम है इनका हेक्टर ह्यूग मुनरो, और साकी ये इनका स्यूडोनेम है। एक्टन बेल अभी मैंने पीछे डिस्कस कर दिया, एने ब्रॉन्टी का है एक्टन बेल, राइट, ऑलरेडी कवर्ड अबव इन ब्रॉन्टी सिस्टर सेक्शन फॉर क्लैरिटी अगेन हियर, राइट। नाउ क्यूरल बेल, अगेन ये आपको क्लैरिटी के लिए मैंने दे दिया क्यूरल बेल, क्योंकि वहाँ पे एकदम एक साथ में मैंने दे रखा था, दैट्स वाई यू जस्ट डोंट कन्फ्यूज। एंड नेक्स्ट वी हैव इलिसबेल, जो आपका किसका है, एमिली ब्रॉन्टे का। So friends, here I have done with the pseudonyms and the subtitles. Now I'm going to give you Booker Prize winning authors and major works for UGC NET exam point of view. V.S. Naipaul, Booker Prize in a Free State 1971. इनके other major works हैं like House of Mr. Biswas 1961, The Mimic Man 1967 and The Enigma of Arrival, this is 1987. Now these major works you will have to keep in your mind along with year of publication. Now in a Free State, this is the Booker Prize winning text written by V.S. Naipaul. Now the next one we have Salman Rushdie, Booker Prize winning work Midnight Children, that was published 1981. Now Booker of Bookers इनको मिल रखा है इसके लिए 1993, बेस्ट बुकर भी मिला है 2008 में, और इनके अदर वर्क्स हैं लाइक शेम 1983, सैटेनिक वॉर्स 1988 एंड द मूर्स लास्ट साइन 1995. Arundhati Roy won Booker Prize for the work The God of Small Things, that was published 1997. Kiran Desai Booker Prize she won for the work The Inheritance of Loss 2006. Arvind Adiga Booker Prize The White Tiger 2008 publication. Other works इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं like Between the Assassination, that was 2008. Like Z.M. Coetzee Booker Prize Life and Time of Michael K 1983, और Disgrace के लिए इनको मिला हुआ 1999, और other major work इनके Waiting for the Barbarians 1980. Now all are important for exam point of view. Now the number 7 we have Hilary Mantel Booker Prize वॉल्फ हॉल के लिए इन्हें मिला है एंड ब्रिंग अप द बॉडीज 2012 पब्लिकेशन. मार्गरेट एटवुड बुकर प्राइज इन्हें मिला है द ब्लाइंड असैसिन के लिए 2000 एंड द टेस्टिमेंट के लिए 2019, राइट. कजुओ इशिगिरो बुकर प्राइज द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए 1989 पब्लिकेशन. यान मार्टेल बुकर प्राइज इन्हें लाइफ ऑफ पी के लिए मिला हुआ है पाई 2002. माइकल उदानजी बुकर प्राइज द इंग्लिश पेशेंट के लिए इनको मिला हुआ है 1992 पब्लिकेशन. Ben Okri The Famished Road 1991, right, Booker Prize winning work. Peter Carey Booker Prize for Oscar and Lucinda 1988 and The True History of the Cali Gang 2001. Now Penelope Lively Booker Prize for Moon Tiger 1987. Now these all texts are most important and year of publication, please keep in mind, and author itself, because these repeated in matching and chronology questions, so please just be prepared for this also, right. Julian Barnes Booker Prize for The Sense of an Ending, this is 2011 publication. Ruth Pawar Jawala Booker Prize for Heat and Dust 1975 publication. Nadine Gordimer Booker Prize for The Conservationist 1974 publication. Now the number 18 we have George Saunders Booker Prize for Lincoln in the Bardo, this is 2017 publication. Damon Galgut, this is he wrote the work The Promise, which was gave him Booker Prize in the, or that was published actually 2021, बहुत recent work है ये. Next we have सेहन करुण तिलका, ठीक है, क्या नाम है ये, करुण तिलक, ठीक है. बुकर प्राइज इन्हें मिला है द 7 मून्स ऑफ माली अलीमीडा के लिए 2022 पब्लिकेशन है. पॉल स्कॉट का बुकर प्राइज विनिंग है स्टेइंग ऑन 1977. हार्वर्ड जिकॉब्सन बुकर प्राइज द फिंकलर क्वेश्चंस 2010. एलन हॉलिंग्सहर्ट बुकर प्राइज फॉर द लाइन ऑफ ब्यूटी 2004. Now the next we have Anita Bruckner Booker Prize for Hotel Jew Lake 1984.
इरिश मुनरो का बुकर प्राइज विनिंग वर्क है द सी 1978 एंड द जॉन बर्गर बुकर प्राइज फॉर जी के लिए मिला है 1972. सो हेयर आई डन विद द बुकर प्राइज विनिंग ऑथर्स और उनके मेजर वर्क्स जो आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने ही करने एट एनी कॉस्ट. अभी ये 3 चीज़ें मैंने आपके साथ गाइज शेयर की हैं, बुकर प्राइज विनिंग एंड सब टाइटल्स एज वेल द स्टूडेंट्स. होप आपको ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिलाएंगे. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स. अगर वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड लीव कॉमेंट वट एवर यू थिंक about this video and if you not subscribe my channel yet, do subscribe it.